أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरतुल अंबिया आयत नंबर 67 से आयत नंबर 82 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। सबसे पहले इन आयात का तर्जुमा और फिर इनकी तफसीर इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे।
تو اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 68، قالو، یہاں سے ہم نے تلاوت کا آغاز کیا۔ تو قالو، انہوں نے کہا، حرقوہ، حرقو، حرق یحرق، اس کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ حرقوہ، تم سب جلا دو اسے، ونصرو، اور تم سب مدد کرو، آلہتکم، اپنے معبودوں کی، کہ اس آدمی کو آگ میں جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم، اگر تم ہو، فاعلین، سب کرنے والے، اگر تم نے کچھ کام کرنا ہے تو یہ کام کرو، اگر تم نے کچھ کام کرنا ہے تو یہ کام کرو، ٹھیک ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نار، یا ہے نار، آگ، کونی، کونی، تو ہو جا، بردا، ٹھنڈی، وسلامہ، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ وَأَرَادُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بھی اس کے ساتھ، کیدا، ایک حیلے کا، منصوبے کا، ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا، حیلہ بنایا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ، تو ہم نے کر دیا انہیں، الْأَخْسَرِينَ، انتہائی خسارہ پانے والی۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہیں پوری طرح ناکام کر دیا، انہیں بنا دیا انتہائی خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اسے، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ، اس زمین کی طرف، الَّتِي، جو کہ، بارکنا، ہم نے برکت رکھی، فیہا، اس میں۔ ہم نے انہیں اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہاں کے لیے برکتیں رکھی ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، لہو، اس کو، اسحاق، اسحاق، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، نافلتاً، مزید، یا انعام کے طور پہ، ہم نے ان کو انعام کے طور پہ اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ٹھیک ہے۔ نافل زائد کے معنی میں بھی آتا ہے، انعام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَكُلًّا، اور سب کو، جعلنا، ہم نے بنایا، صالحین، نیک، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنایا انہیں، أَئِمَّةً، پیشوا، امام، ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا، یہدون، وہ سب رہنمائی کرتے تھے، فعل الخیرات، اچھا، یہدون، وہ سب رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے ساتھ، ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الیہم، ان کی طرف، فعل الخیرات، نیکیاں کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا، اور وہ سب تھے، لنا، ہمارے لیے، عابدین، عبادت کرنے والے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، آتینا، ہم نے دی اسے، یا ہم نے دیا اسے، حکماً، حکمت، وعلما، اور علم، ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اسے، من القریۃ، اس بستی سے، التی، جو کہ، کانت، تھی، تعمل، یعنی وہ، کانت تعمل، یہ ایک ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے، الگ الگ ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ کانت تعمل، وہ بستی کام کرتی تھی، الخبائث، گندے، یعنی ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی۔ انہم، بے شک وہ سب، انہم، بے شک وہ سب، انہم، بے شک وہ سب تھے، قوم، لوگ، سو، ان، برے، فاسقین، نافرمانی کرنے والی، حقیقت میں وہ بہت برائی والی، نافرمانی قوم تھی۔
नाफरमान कौम थी। वअदखलनाहु, और हमने दाखिल किया उसे फी रहमतिना, अपनी रहमत में, इन्नहु, बेशक वो, मिनस सालिहीन, नेकी करने वालों में से था, नेकों में से था। ठीक है, यकीनन वो नेक लोगों में से थे। वनूहन, और नूह अलैहिस्सलाम को, जब नादा, नादा उसने पुकारा, मिन कब्ल, इससे पहले, फस्तजबना, तो हमने दुआ कबूल की, लहू, उसकी, फनज्जयनाहु, फिर हमने निजात दी उसे, व अहलहु, और उसके अहल को, यानी उसके घर वालों को, मिनल कर्बिल अज़ीम, बड़ी घबराहट से, बड़ी भारी मुसीबत से हमने उन्हें निजात दी। वनसरनाहु, और हमने मदद की उसकी, हमने मदद दी उसे, मिनल कौमी, उन लोगों पे, अल्लदीना, जिन्होंने, कज़्ज़बू, जुटलाया, भी आयातिना, हमारी आयतों को, जिस कौम ने हमारी निशानियों को जुटलाया था, उसके मुकाबले में उनकी मदद की। इन्नहुम, बेशक वो सब थे, कौम सौ, इन बुरे लोग, फागरकनाहुम, तो हमने गर्क कर दिया उन्हें, अजमाइन, सब के सब को। वो बहुत बुरे लोग थे, इसलिए हमने उन सब को क्या कर दिया, गर्क कर दिया। व दाऊद, और दाऊद अलैहिस्सलाम, व सुलेमान, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को, इज यहकुमानी, जब वो दोनों फैसला कर रहे थे, फिल हर्थ, खेती के बारे में, इज, जब, नफशत, रात को चढ़ गई थी, या रात में दाखिल हो गई थी, फी ही, उसमें, गनमुल कौम, लोगों की बकरियां, यानी जब वो एक खेत के बारे में झगड़े का फैसला कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों की बकरियां रात के वक्त उस खेत में जा घुसी थी, चरने गई थी। वकुन्ना, और हम थे, लिहुक्मिहिम, उनके फैसले के वक्त, शाहिदीन, मौजूद, यानी उन लोगों के बारे में जो फैसला हुआ उसे हम खुद देख रहे थे। फफहमनाहा, फ तो, फहमना, हमने समझा दिया, हाँ, वो मसला जो है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, वकुल्लन आतैना, और हर एक को, आतैना, हमने अता किया, हुक्मन, हिकमत, व इल्मा, और इल्म, और हर एक को हमने हिकमत और इल्म अता किया। ये हुक्मन से मुराद यहाँ पे क्या है, हिकमत है। वसखरना, और हमने मुसखर कर दिया, मा दाऊदा, दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ, अलजिबाल, पहाड़ों को, और हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को ताबेदार बना दिया, युसब्बिहना, वो तस्बीह करते थे, वत्तैरा, वसखरना अलजिबाला, और वत्तैरा, और इसी तरह हमने परिंदों को भी मुसखर कर दिया, ताबे कर दिया दाऊद अलैहिस्सलाम के। वकुलना, और हम थे, फाइलिन, करने वाले, हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को ताबेदार बनाया था, कि वो परिंदों को साथ लेके तस्बीह करे। ठीक है, वअल्लमनाहु, और हमने सिखाई उसे, सनाअत लबूसिन लकुम, सन्नात, कारीगरी, लिबास बनाने की, लकुम, तुम्हारे लिए, हमने उन्हें तुम्हारे फायदे के लिए लिबास बनाने की कारीगरी दी, सिखाई थी, सनात सिखाई थी। लितुहसिनकुम, ताकि वो बचाए तुम्हें, मिन बासिकुम, तुम्हारी लड़ाई में, हल अंतुम शाकिरुन, तो क्या तुम सब शुक्र करने वाले हो। वली सुलेमान, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, अर्रीहा, अर्रीहा, हवा को, यानी तेज चलती हुई हवा जो है, आसिफतन, तेज चलने वाली, तजरी, वो चलती थी, बिअमरिही, उसके हुक्म से, इलल अर्ज़, जमीन पर, अल्लती, जो कि हमने बरकत दी, फीहा, उसमें, वकुलना, और हर चीज, और हम थे, बिकुल शैइन, हर चीज पर, आलिमीन, खूब जानने वाले, यानी हमने तेज चलती हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया, जो कि उनके हुक्म से उस सरजमीन की तरफ चलती थी, जिसमें हमने बरकतें रखी है, और हमें हर हर बात का पूरा पूरा इल्म है। वमिन शयातीनी, और शैतानों में से, मैं यगूसूना, जो सब गोता लगाते थे, लहू, उसके लिए, वयामलूना, और वो सब करते थे, अमलन दून ज़ालिक, इसके अलावा काम, वकुलना लहुम, और हम थे, लहुम, उनके लिए, हाफिज़ीन, हिफाजत करने वाले, और कुछ ऐसे शरीर जिन्नात भी हमने उनके ताबे कर दिए थे, जो उनकी खातिर पानी में गोते लगाते थे, और इसके अलावा और भी काम करते थे, और उन सब की देखभाल करने वाले हम थे।
इन सब की देखभाल करने वाले कौन थे? हम थे। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने बयान कर देंगे, तो मजीद जो है वजाहत भी हो जाएगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई होगी तो ये तर्जुमे के तफसीर के साथ इंशाअल्लाह वो बात भी समझ आ जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन के मंदिर में दाखिल होके उनके बुतों को तहस नहस कर दिया, सिवाय एक बड़े बुत के जो उसे सही सालिम छोड़ दिया था। जब वो लोग अपना त्यौहार मना के वापस आए तो अपनी बुतों की ये हालत देखी तो बड़े नाराज हुए और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। बिलाखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुला लाए और इसके बारे में पूछा तो आपने फरमाया, मुझे क्यों पूछते हो? ये बड़े बुत से जरा पूछो जो इन सब में जिंदा है, शायद ये काम इसी ने खुद किया हो। मुशरिकीन तो पहले शर्मसार हुए और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम इन बुतों से कैसे पूछें, ये तो बोलते ही नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हक बात कहने का मौका मिल गया। कहने लगे कि तुम पे बड़ा अफसोस है कि हमारी इन माबूदों पर भी अफसोस है कि तुम ऐसी चीजों की इबादत कर रहे हो जो ना नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान। कुछ अकल की बात तो करो। जब मुशरिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात का जवाब ना दे सके तो उन्होंने वही हरबा इख्तियार किया। आम तौर पे जाहिल लोग ऐसे मौके पे इख्तियार करते थे, यानी दलील से बात करने की बजाय गुंडागर्दी पे उतर आए। उन्होंने आपस में मशवरा करने के बाद ये फैसला किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो अगर कुछ करना चाहते हो। क्योंकि बादशाह से लेके अदना आदमी तक पूरी की पूरी कौम मुशरिक थी, इसलिए उन्होंने यही फैसला किया कि किसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो आइंदा हमारे माबूदों की तौहीन ना करे। तो उन्होंने आपको ख़त्म करने के लिए जिंदा जला डालने की सख्त तरीन सजा तजवीज़ की। जिना जैसे कभी जुर्म की सजा संसारी है जो सबका अक़वाम में भी राइज थी और हमारी शरीयत में भी बरकरार है, मगर उससे भी सख्त सजा जलाने की है। अल्लाह ताला ने बंदों को ये सजा देने का इख्तियार किसी को नहीं दिया। हदीस शरीफ में आता है कि किसी आदमी को आग में डालने की सजा ना दी जाए क्योंकि ये सख्त तरीन सजा अल्लाह ताला खुद मुशरिकीन को देगा। तो बहरहाल मुशरिकीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का फैसला किया। कहा जाता है कि उस हुक्म पे अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्फा दिया गया। उस दौरान आग जलाने के लिए वसी पैमाने पे सामान जमा किया गया, हर एक ने अपना हिस्सा डाला। हत्ता कि जो औरत बीमार होती या कोई बच्चा बीमार होता तो वो मन्नत मानते कि शिफा याबी हासिल होने पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग के लिए इतना ईंधन वो जमा करूंगा। जब ईंधन जमा हो गया तो मुकर्ररा तारीख पे आग जलाई गई जिसके शोले आसमान से बातें करने लगे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का मसला था, तो आपके कपड़े उतार कर बिल्कुल बराना कर दिया गया और आग को फेंकने के लिए मिंजनीक इस्तेमाल कर दी है। ये पुराने जमाने में तोप की किस्म का आला हुआ करता था, इस पे पत्थर बांध के उसकी चरखी घुमाते थे। वो पत्थर या बारूद वगैरह दुश्मन की सफों में दूर तक गिर जाता था।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बराना हालत में रस्सियों के साथ मंजनीक पे बांध दिया गया, उसकी चरखी घुमा के आग के दरमियान में फेंक दिया गया। बुखारी शरीफ और तिरमिजी शरीफ की हदीस से मालूम होता है कि हदीस में आता है कि हशर के मैदान में सब लोग बरहना होंगे तो अल्लाह ताला सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाएंगे और आपको ये एजाज मुशरिकीन की तरफ से बराना करके आग में फेंकने के बदले में मिलेगा। जब उन्होंने आपको आग में फेंक दिया तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, कुलना या नार कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा है आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जाओ, खबरदार आपको जलाना नहीं है। तफसीरी रिवायत के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 दिन 40 दिन या 50 दिन उस आग में पड़े रहे। मुशरिकीन की यकीन हो गया कि आप भस्म हो चुके होंगे, मगर उधर से अल्लाह ताला का हुक्म भी हो चुका था, लिहाजा आग ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म का एक बाल भी ज़ाया ना हुआ। सिर्फ वो रस्सियां जल गई जिनसे आपके हाथ पांव बांधे गए थे और इस तरह आप उन रस्सियों से भी आज़ाद हो गए। अल्लाह ताला ने आपको जिंदा सलामत रखा। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने आग को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने से रोक दिया था और जलाने वाली आग बतौर मौजिज़ा आप पे ठंडी और सलामती वाली बन गई। मौलाना अब्दुल बारी रहमतुल्लाहि अलैह ने साइंस के बारे में किताब लिखी है जिसमें बहुत से साइंसदानों के अक़वाल नकल किए हैं। वो एक कौल ये भी है कि हर सबब जब मुसब्बब से मिलता है, हर सबब जब मुसब्बब से मिलता है तो वो हुक्म का मुंतज़िर होता है कि इस सबब का असर ज़ाहिर करूँ या ना करूँ। अल्लाह ताला तमाम चीज़ों का मुसब्बिबुल असबाब है। वो जब चाहता है किसी सबब के असर को ज़ाहिर कर देता है और जब चाहता है उस असर को रोक लेता है। और जैसा कि अर्ज़ किया कि इस उसूल को जदीद साइंसदानों ने भी तस्लीम किया है। वह सबब मुसब्बब इल्लत और मालूल के दरमियान ये रब्त अक़ली तौर पे लाज़मी नहीं है बल्कि जुदा भी हो सकता है। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो मज़कूरा बाला उसूल के मुताबिक सबब यानी आग ने अपने असर को रोक लिया और इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलने से बच गए। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निज़ाम कुदरत में इल्लत और मालूल के तलाज़ुम को बातिल करना पसंदीदा अमर नहीं है। आम तौर पर अल्लाह ताला इल्लत और मालूल के रिश्ते को कायम रखता है और इल्लत मालूल पे असरअंदाज हो जाती है, ताहम कभी कभी उसके बरक्स हो जाता है और इल्लत अपना असर ज़ाहिर नहीं करती। चूंकि ये चीज़ आम आदत के खिलाफ होती है इसलिए इसको मौजिज़े से ताबीर किया जाता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मौजिज़ा हो गया कि अल्लाह ताला ने उनको ये इज़्ज़त बख्शी कि आग के जला डालने के असर को क्या कर दिया, मौकूफ़ कर दिया। इस किस्म की मिसाल बाज़ दूसरी चीज़ों में भी मिलती है। मसलन प्यास के मरीज को पानी का पूरा तालाब पिला दो, उसकी प्यास नहीं बुझती क्योंकि अल्लाह ताला ने सबब के असर को ज़ाहिल कर दिया और वो आदत के खिलाफ प्यास नहीं बुझाता। बाकी इरशाद हुआ व आरादु बिही कैदा, मुशरिकीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला डालने का बुरा इरादा किया था। फजअलनाहुम अखसरीन, मगर हमने उन्हें उनको खसारा उठाने वाला बना दिया, वो जलील और ख्वार होके रह गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग से बच कर जाना ये किसी के वहम और गुमान में भी नहीं था, मगर आप आग में भी सही सलामत रहे। मुशरिकीन की सारी तदाबीर जो है वो नाकाम हो गई। अपनी इस वाज़ेह शिकस्त और अल्लाह ताला की कुदरत को अपनी आंखों से देखने के बावजूद वो ईमान न लाए, बल्कि अपनी दुश्मनी पे अड़े रहे और आइंदे के लिए फिर मनसूबाबंदी कर दी। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुशरिकों की दुश्मनी किसी तरह भी कम ना हुई तो अल्लाह ताला ने आपको हिजरत करने का हुक्म दिया। वाह
वनज्जयनाहु वलूतन इलल अर्दि allati बारकना फिहा लिल आलमीन। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आपके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को निजात दी उस सरजमीन की तरफ जिसमें हमने जहां वालों के लिए बरकतें रखी है। इससे मुराद शाम और फ़लस्तीन की सरजमीन है जिस जगह के लिए आपको हिजरत कर जाने का हुक्म हुआ। आपका भतीजा लूत जो है बचपन ही से आपके पास रहता था, ईमानदार था, तो हिजरत में भी वो आपके साथ था। अल्लाह ताला ने कमाल दर्जे का इल्म और हिकमत अता फरमाई थी, तो हिजरत के सफ़र के दौरान ही अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया कि वो मशरिकी उर्दन के इलाके में सद्दूम, दवामा और सहूदा वगैरह की बस्तियों में जाके अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाए। और दूसरा ये कि ववहबना लहू इसहाक व याकूब नाफिला, आपको इसहाक जैसा अजीम बेटा भी अता फरमाया। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने पहले आपको हाजिरा के बतन से इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा अजीम बेटा अता फरमाया और फिर उसके 16 साल बाद इसहाक अलैहिस्सलाम अता किया। आपने तो सिर्फ बेटे के लिए ही दुआ की थी, मगर अल्लाह ताला ने ये इनाम भी किया कि उनकी ज़िंदगी में व याकूब नाफिला, याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पोता भी अता फरमाया। नाफिला जायद चीज़ को कहते हैं और मतलब यही है कि ख्वाहिश तो सिर्फ बेटे की थी, मगर अल्लाह ताला ने पोता भी दिखा दिया। वकुल्लन जअलना सालिहीन, हमने सबको नेक लोगों में से बनाया। सालिह तो आम ईमानदार को भी कहा जाता है, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम को आला दर्जे की सलाहियत, नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, और हमने उन्हें पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म के मुताबिक लोगों की हिदायत का सामान करते थे, यानी फरीज़े नबूवत और रिसालत अदा करते थे। वअवहयना इलैहिम, और हमने उनकी तरफ वही की, फ़िअल खैराती, नेकियों की करने की, व इक़ामत सलाह, नमाज के क़याम की, व ईता ज़का, और ज़कात की अदायगी की, व कानू लना आबिदीन, और वो हमारी इबादत गुजार थे। ये सब के सब दिन रात हमारी इबादत में मशगूल रहते थे। जब अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत अता फरमाई तो उसका शुक्रिया भी अदा करते थे। वलूतन आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, और लूत अलैहिस्सलाम को हमने हिकमत और इल्म अता फरमाया, आपको फहम और समझ अता फरमाई। इससे पहले हमने पढ़ा था वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दा, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही में कमाल दर्जे की समझ अता फरमाई। इसी तरह अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को भी कमाल दर्जे की दानाई और इल्म से नवाजा था। जैसा कि पहले आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने दौरान सफ़र ही लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और तबलीग हक़ के लिए मशरिकी उर्दन के इलाके में मामूर किया। वहाँ पे आपने काफ़ी लंबा अरसा गुजारा, शादी भी वही हुई, लेकिन वो लोग मुशरिक थे, नहायत गलत और गंदे काम करते थे। आपको अल्लाह ताला ने बेटियां भी अता फरमाई जो ईमान ले आई, मगर बीवी मुशरिका ही रही। जब उस बस्ती के मज़ालिम लूत अलैहिस्सलाम पे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया वनज्जयनाहु मिनल क़र्यति अल्लती कानत तामलुल ख़बाइस, हमने लूत अलैहिस्सलाम को उन बस्ती वालों से निजात दिलाई जिसके लोग खबीस काम करते थे। सूरह अनकबूत में है इन्नकुम लतअतूना रिजाल व तक़तऊना सबील। लूत अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि तुम खिलाफ वज़ा फितरत काम करते हो, लोगों का रास्ता काटते हो, उनको पत्थर मारते हो। ये लोग अपनी मजलिसों में सरेआम लवातत करते थे। तो फरमाया हमने निजात दी लूत अलैहिस्सलाम को गलत काम करने वालों की बस्ती से। इन्नहुम कानू कौम सौइन फासिकीन, ये बुरे लोग थे और हद से ज्यादा नाफरमान थे। अल्लाह ताला ने आपको उस कौम से निजात दिलाई और कौम को सख्त अजाब में मुब्तला किया। उन पर आसमान से आग और पत्थर बरसे और उनकी बस्ती उलट दी गई। और लूत अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वअदखलनाहु फी रहमतिना, हमने उनको अपनी रहमत खासा में दाखिल किया। इन्नहु मिनस सालिहीन, बेशक
वो नेकी करने वालों में से थे, आप अल्लाह ताला के पाकबाज रसूल थे। फिर आगे फरमाया वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु, हमने नूह अलैहिस्सलाम को निजात दी कि उन्होंने इससे पहले पुकारा। पहले से मुराद ये कि नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी हज़ारों साल पहले का है। नूह अलैहिस्सलाम ने तवील अरसे तक अपनी कौम को तबलीग की, मगर वो सीधे रास्ते पे ना आए बल्कि उल्टा अल्लाह के पैगंबर को तकालीफ पहुंचाते रहे। आखिर तंग आकर आपने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि मौला करीम इन लोगों का फैसला फरमा दीजिए। मौला करीम इन लोगों का फैसला फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया फस्तजबना लहू, तो हमने उनकी दुआ को शरफ कबूलियत बख्शा। फनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, आपको और आपके घर वालों को सख्त बेचैनी से निजात दिलाई जो आपको हर वक्त लाहिक रहती थी। वनसरनाहु मिनल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, हमने उनकी मदद की उस कौम के मुकाबले में जो हमारी आयतों को झुटलाया करते थे। इन्नहुम कानू कौम सौइन फअगरकनाहुम अजमईन, बेशक वो बुरे लोग थे, सारी की सारी कौम बदबख्त थी। सूरह आराफ में है कौम आमीन, सारी कौम अंधी थी। ये आंखों से अंधे नहीं थे बल्कि इनके दिल की आंखें अंधी थी, सोचने समझने की सलाहियत से महरूम थे। सिर्फ वो लोग ईमान लाए जो आपके साथ कश्ती में सवार हुए और उनकी तादाद 80 के करीब थी। उनके अलावा आपकी बीवी और बेटा भी नाफरमान थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अग़रक़नाहुम अजमईन, हमने उन सारे नाफरमानों को पानी में डबो के हलाक कर दिया और इस तरह नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम से निजात दिलाई। तो इन तमाम वाक़यात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के लिए तसल्ली का मज़मून है कि देखो अल्लाह ताला के साबिक़ा नबियों के साथ भी बड़ी बड़ी बदसलूकियाँ की गई, मुनकिरीन तबाह व बर्बाद हुए, इसी तरह आपके मुखालिफिन भी तबाह होंगे। आप इत्मीनान रखें और अपना काम जारी रखें। फिर आगे फरमाया व दाऊद व सुलेमाना, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी हमने इल्म और हुकमत अता की। अगर इस आयत में इल्म और हिकमत के अल्फाज नहीं है, लेकिन माकबल वाली आयत पे इसका आतफ किया गया है। लूत अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया था कि हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता फरमाया, इसी तरह हमने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिकमत और इल्म अता फरमाया। इज़ यहकुमानी फिल हर्स, जबकि वो दोनों खेती के बारे में फैसला करते थे और वजह तनाज़ो ये थी इज़ नफ़शत फ़ीहि गनमुल कौम, कि रात के वक्त बाज़ लोगों की बकरियां उस खेत को चर गई थी। नफश असल में रात के वक्त खेत को रौंद डालने या पामाल कर देने को कहते हैं। बाद लोगों की बकरियां किसी दूसरे शख्स के खेत में रात के वक्त दाखिल हुई, उन्होंने पूरे खेत को पामाल करके रख दिया। जाहिर है कि ऐसी सूरत में नुकसान ज़दा फरीक ने दाऊद अलैहिस्सलाम के पास शिकायत की और अपने नुकसान की इजाले की दरख्वास्त की। जब ये मामला फैसले के लिए अल्लाह ताला के नबियों के सामने पेश हुआ, वकुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, तो हम तनाज़ो के फैसले के वक्त हम हाजिर थे, गोया ये फैसला हमारी मौजूदगी में हुआ। खेत के उजाड़े का फैसला तो बाप बेटे दोनों ने किया। ताम फरमाया फफहमना सुलेमान, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमने ज्यादा फाहम और फरासत अता की और ज्यादा बेहतर बात उनको समझा दी थी। वकुल्लन आतीना हुक्म व इल्मा, हमने हर एक को हिकमत और इल्म अता किया। जब ये मुकदमा पेश आया, उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम छोटी उम्र के थे, ताम अल्लाह ताला ने आपको ज्यादा समझ अता की थी। उस वक्त मसनद खिलाफत पे दाऊद अलैहिस्सलाम फाइज थे। मुकदमा पेश हुआ, बाद लोगों की भेड़ बकरियां रात के वक्त किसी दूसरे शख्स के खेत या बाग में दाखिल हो गई, उन्होंने फसल का नुकसान किया। बाज कहते हैं कि ये खेती थी, बाज कहते थे कि अंगूर की बेलें थी जो बकरियों ने रौंद डाली। बहरहाल केस दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश हुआ।
आपने फरीकैन के दलाइल सुने और नतीजा ये अखज़ किया कि खेती या बाग का नुकसान उसको ख़राब करने वाली बकरियों की कीमत के बराबर बनता है। तो आपने फैसला ये किया कि सारी बकरियां खेत या बाग के मालिक को दे दिए जाएं। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अदालत में मौजूद थे। फैसला सुनाए जाने के बाद उन्होंने भी कुछ अर्ज करने की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस मुकदमे का बेहतर हल ये है कि सारी बकरियां खेत वालों की सुपुर्द की जाए, वो इनके दूध, ऊन और उनके बच्चों से फ़ायदा उठाए और इस दौरान में बकरियों के मालिक खेत पे काम करे। जब फसल उसी हालत में आ जाए जिस हालत में उसे उजाड़ा गया था, तो खेत के मालिक अपने खेत को संभाल ले और बकरियां उनके मालिकों को वापस कर दी जाए। इस तरह फरीकैन को उनका हक भी मिल जाएगा और किसी एक का नुकसान भी नहीं होगा। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये तजवीज़ पसंद आई। उन्होंने अपना फैसला उसके मुताबिक बदल दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 11 साल थी और वो 13 साल की उम्र में अपने वालिद के जानिशीन बने। दाऊद अलैहिस्सलाम की मजीद 18 बेटे भी थे, मगर जो फ़हम और इदराक अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किया था, वो किसी दूसरे बेटे में नहीं था। और ये दोनों बाप बेटे अल्लाह ताला के साहिब किताब नबी थे। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर और सुलेमान अलैहिस्सलाम को बाद सहीफ़े अता किए। उन्होंने कम उम्र ही में ऐसा उम्दा फैसला किया जो फरीकैन के हक में मुफीद था। अगरचे दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला भी शरीयत के मुताबिक सही था कि जितना किसी का नुकसान हुआ उतना ही जुर्माना दिया जाए, और हमारी शरीयत का भी यही कानून है कि नुकसान वाले का नुकसान पूरा हो। ताहम बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला सही था, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैसला अस्वब यानी ज़्यादा दुरुस्त था। इस बारे में फुक़हाए किराम में थोड़ा इख्तिलाफ भी पाया जाता है कि किसी खेत या बाग की खराबी के इजाले के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी के जानवर दिन के वक्त किसी फसल का नुकसान कर दे, तो उस नुकसान की किसी जानवर उस नुकसान की जिम्मेदारी जो है खेत के मालिक पर आती है, क्योंकि दिन के वक्त में खेत की हिफाजत उसके जिम्मे है। लेकिन अगर ऐसा नुकसान रात के वक्त हो, तो उसका जिम्मेदार जानवरों का मालिक होगा, वो नुकसान की तलाफी करेगा, क्योंकि उसका फर्ज था कि रात के वक्त जानवरों को बांध के रखता। इस हदीस के मुताबिक इमाम शाफी साहब रहमतुल्लाह अलैह यही फतवा देते हैं कि अगर नुकसान दिन के वक्त हो तो जानवरों के मालिक पे कोई तावान आयद नहीं होता। अगर रात को खराब किया हो तो फिर वो नुकसान का इजाला करेगा। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि जानवर दिन को नुकसान करे या रात को, उनके मालिकों पे जिम्मेदारी आयद नहीं होती जब तक कि उसमें ताअद्दी का अनसर ना पाया जाए, जुल्म का अनसर ना पाया जाए। यानी जानवरों का मालिक खुद उन्हें किसी दूसरे के खेत में छोड़ता है, तो फिर वो नुकसान का जिम्मेदार होगा। और अगर जानवर खुद ब खुद रस्सी तोड़ के किसी के खेत का नुकसान कर दे, तो फिर उनका मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। सहीहैन की रिवायत में भी आता है कि अगर किसी का जानवर किसी शख्स को जख्मी कर देता है या कोई नुकसान पहुंचाता है, तो वो रायगा है, जानवर का मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन अगर मालिक जानबूझकर जानवर के लिए ऐसे हालात पैदा करता है जिससे किसी का नुकसान होता है, तो ये ताअद्दी की तारीफ में आएगा और मालिक पे नुकसान भी आएगा, तावान भी आएगा, चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो। और आपने ये भी फरमाया वल बीरु जबार, उनके कोई शख्स कुआं खुदवाता है और मजदूर उस खुदाई के दौरान हलाक हो जाता है, तो कुएं के मालिक पे कुछ तावान आयद नहीं होगा, क्योंकि ये इत्तेफाकी मौत समझी जाएगी। इसी तरह कारकुन का मामला भी है कि अगर दौरान एक काम कोई मजदूर जान बहक हो जाए, तो मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। अलबत्ता अगर मुताल्लिका कंपनी या हुकूमत मफाद आम के लिए ऐसा कानून बना दे जिसमें हलाक होने वाले के लिए मुआवजा मुकर्रर हो,
वैसा मुआवजा देना और लेना दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मादन जब्बारुन, ये कानून की मौत रायगाह है, और मादनियात में पांचवा हिस्सा ज़कात अदा करना लाजिम है। फिर यहाँ ये सवाल होता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैसे रद्द किया? क्या ये वही इलाही थी या इज्तिहाद था? तो मालूम होता है कि जो भी सूरत थी उस वक्त की शरीयत में फैसले की तब्दीली जायज़ थी। आज भी जो है एक जज दूसरे जज के फैसले को मनसूख या तब्दील करने का मुजाज होता है। बड़ी अदालत छोटी अदालत के फैसले को तब्दील करने की मुजाज होती है। हर फरीक को अपील का हक मिलता है। बाद रिवायत से मालूम होता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी जज की हैसियत हासिल थी, और आपने खुद उन्हें मुकदमात की देखभाल का काम सुपुर्द कर रखा था। इसके अलावा ये बात भी हो सकती है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अभी कतई फैसला नहीं किया था, सिर्फ अपनी राय जाहिर की थी कि इस मुकदमे का फैसला इस तरह होना चाहिए। इसी दौरान सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपनी राय का जो है वो इजहार कर दिया, जिसे कबूल कर लिया गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया पे किए गए बाज़ इनामात का तज़किरा फरमाया। वसख्खरना मअ दाऊद अल जिबाल, हमने पहाड़ों को दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। युसब्बिहना वत्तैर, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। वत्तैर, और परिंदों को भी आपके ताबे कर दिया। जब दाऊद अलैहिस्सलाम खुश इल्हानी के साथ किताब इलाही की तलावत करते, कि हम सना बयान करते, तो पहाड़ और परिंदे भी हम जुबान होकर तस्बीह करने लगते। पहाड़ों और परिंदों की ये तस्बीह जुबान हाल से नहीं बल्कि जुबान काल से होती थी। जुबान हाल की तस्बीह तो अब भी हर चीज बयान करती है जिसे हम सुन नहीं सकते, मगर पहाड़ और परिंदे जो दाऊद अलैहिस्सलाम की साथ तस्बीह में शामिल होते थे, वो जुबान काल से होती थी। ये दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि पत्थर, दरख्त और परिंदे भी बोलने लगते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई ये ना समझे कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ये जाती फेल था और उन्हें उसका इख्तियार हासिल था, बल्कि वकुन्ना फाइलीन, इस फेल को अंजाम देने वाले हम ही थे। अल्लाह ताला ये काम अपनी कुदरत ताम्मा से करता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक और इनाम, अल्लाह ताला ने उन पे एक और इनाम फरमाया था, वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम, हमने आपके लिए लिबास बनाने का फन बता दिया, लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम, ताकि वो तुम्हें दौरान जंग बचा सके। आपकी ये खासियत थी कि आप लोहे को गर्म किए बगैर कड़ियां बनाते और फिर उन्हें जोड़ के ज़ीरत तैयार करते, तो जंग के दौरान वो पहनी जाती। अल्लाह ताला ने आपके हाथ पे लोहे को मोम की तरह नम कर दिया था। फाल अंतुम शाकिरून, क्या शुक्र करने वाले हो? ये अल्लाह ताला का खास इनाम था कि तुम्हारे फायदे के लिए दाऊद अलैहिस्सलाम आसानी से ज़ेरा साजी कर लेते, वरना आमतौर पे लोहे को गर्म करके ज़रा साजी करने में बहुत मेहनत दरकार होती है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात खुसूसियात का जिक्र हुआ। वली सुलेमान अर्रीह आसिफा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तेज हवा को मुसख्खर कर दिया। तजरी बिअमरी इलल अर्दि लती बारकना फीहा, जो अल्लाह ताला के हुक्म से उस पाक जमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा की तस्खीर में भी बाज लोग एतराज करते हैं। वो कहते हैं कि आम हवा आपकी ताबी नहीं थी बल्कि समंदरी हवा थी। हालांकि ये बात नहीं है, जिन लोगों को अल्लाह ताला की कुदरत समझ में नहीं आती वो ऐसी एतराज करते हैं। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, उसकी मशीयत और इरादे में कोई चीज़ आयल नहीं हो सकती। उसने अगर पूरी हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया तो इसमें हैरानगी की कौन सी बात है? आप अपना तख्त बिछाते, खुद सवार होते, अपने हवारियों को सवार करते और फिर हवा को हुक्म देते थे, तो वो आपका तख्त हेलीकॉप्टर की तरह फिजा में ले उड़ती थी। एक माह का सफर एक दिन में तय करते थे। बहरहाल फिर आगे फरमाया, वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, हम हर चीज को जानने वाले हैं।
हमारे इल्म से कोई चीज बाहर नहीं है, हम हर चीज पे कुदरत भी रखते हैं। वमिनश शयातीन मन यगूसूना, और हमने शयातीन यानी जिन्नात को भी आपके ताबे कर दिया जो आपके लिए गोता लगाते थे, यानी समंदरों से मोती और जवाहिरात निकालते थे जिन्हें आप अपने काम में इस्तेमाल करते थे। वयामलून अमलन दून ज़ालिक, और इसके अलावा भी बहुत से काम करते थे। सूरह सबा में आता है कि पत्थरों को तराश कर बर्तन बनाते थे, बड़े बड़े पत्थरों को काट कर इमारतें बनाते थे। वकुन्ना लहुम हाफिज़ीन, हम उनकी निगहबानी और हिफाजत करने वाले थे, ताकि कोई शरारत वगैरह ना कर सके। अगर कोई जिन किसी काम में गड़बड़ करता था या नुकसान पहुंचाता था तो अल्लाह ताला ने फरमाया हमने उनको सजा भी देते थे। कोई अल्लाह ताला ने जिन्नात को मुकम्मल तौर पे सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में दिया था, तो वो जिस तरह चाहे उनसे काम ले, वो हुक्मदुली भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि खुद अल्लाह ताला उन पे निगरान थे। तो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पे बड़ा फजल किया था, उन्हें बड़ा बुलंद मकाम अता फरमाया था। ताहम आप पे बाज आजमाइशें भी आई जिनका जिक्र दूसरी सूरतों में मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 82 तक तर्जुमा भी मुकम्मल हो गया, तफसीर भी मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।